Okay students, we have already done problem number 6 is over. We'll have to start with problem number 7. Okay, let's read the problem what it is. Use the factor theorem to prove x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Okay, we have to prove that this is a factor. If this is a factor, what we have to do is we have to substitute the value of x from the divisor, that is x plus 3 is equal to 0, and what we have, x is equal to minus 3. Okay, substitute this value in such a way that the value of the polynomial will be 0. If it is not 0, then it is not an factor. If the value comes to 0, then it is a factor. Let's start. Okay, first, since x plus 3 is equal to 0, therefore x is equal to minus 3. Substituting x is equal to minus 3 in the equation, we get, first write down the equation, x square plus 2x minus 3, the problem what is given. Okay, now substitute the value, x is minus 3 square, okay, minus 3 bracket square plus 2 into bracket, that is minus 3, and again minus 3 outside. So now we have 3 3s are 9, that will be positive. Okay, you don't have to write the positive sign, it's only for your understanding. You can write 9 minus 6, why 6, 2 3s are 6 and a minus sign. So 9 minus 6 and minus 3. So what is minus 6 and minus 3 is 9. Okay, minus 9. So we have 9 minus 9. Okay, after solving this we get 0. So what do you mean? The value of the polynomial if x is equal to minus 3, that means x plus 3 is a divisor, or of course it is a divisor, but it is a factor of x square plus 2x minus 3. Since we have value as 0, therefore the remainder is 0, therefore x plus 3 is a factor of the given polynomial. Okay, finished? समझ में आ गया? सिंपल है, हम लोग ने ऐसा बहुत सारा सम्स किया है, इसलिए बहुत ईजी है समझना. वीडियो छोटा है ना बराबर. ओके, प्रॉब्लम नंबर 8. Prove x minus 2 is a factor of, prove x minus 2 is a factor of, okay, x minus 2 is already a factor, find m. Okay, here they have given us, the problem is x cube minus mx square plus 10x minus 20, and they have already said that x minus 2 is a factor. Okay, understand the problem first. X minus 2 is a factor, that means if you put the value, you have to get the equation value as 0. When you substitute the value of x in the equation, you will get final answer 0. If that is the case, you have to find the value of m. Okay, let's start the problem. First हम लोग क्या करेगा, डिवाइजर में वैल्यू लेने का है. Okay, स्टैंडर्ड स्टेप अपना. Since x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2 plus 2, that is positive. Okay, चलो substitute x is equal to 2 in the given equation. Equation x cube is 2 cube minus m into x square, that is 2 square, plus 10 into x is again x is 2. Okay, so 10 into 2 minus 20 as it is. Okay, when you is equal to 0, this is by factor theorem. Okay, you can write the reason here by factor theorem, theorem theorem. Okay, by factor theorem. So now 8 minus m into 4 will be 4m. Okay, you have 10 plus 2 is plus 20 minus 20, as it is plus 20 minus 20 getting cancelled. So what is balance left? 8 बचा है and minus 4m बचा है. Okay, so we have minus 4m is equal to 8 minus 4m is equal to 0. Okay, 0 as it is है right hand side का. So minus 4m is equal to minus 8. So therefore m is equal to minus 8 divided by minus 4. Minus minus cancel, 4 1s are 4 2s are 2 आ गया. m is equal to 2. Value of m is 2 हो गया. You wanted to find m, value of m. Value of m is 2. So this is your final answer. Okay, easy है, simple है. Let's move to problem number 9. Problem number 9 भी easy है, but there are 3 parts, 1 2 and तीसरा मैंने शायद पीछे सॉल्व किया. ओके, 1 2. ओके, देयर आर ओनली 2 पार्ट्स नॉट 3. ओके, लेट्स सी. फाइंड qx is a factor of px.
what? Okay, here they have, instead of divisor they have given a polynomial. Dividend polynomial is px and the divisor polynomial they have named it as qx. Okay, you have to find that this is a factor of the given polynomial. Again वही है, खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा उन लोगों ने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है to confuse. Instead of using the divisor they have used the term qx, px qx. Okay, polynomial of x and polynomial of x they have also used it for the divisor. लेकिन polynomial का सिंबल हमेशा p रहता है, q नहीं है. So this is wrong, but presently it is a part of the question, so let's consider it as it is and let's proceed with our solution. पहला क्या रहेगा, x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to प्लस 1. पॉजिटिव आएगा, बराबर दिख रहा है, क्लियर है. पीछे वो थोड़ा शेड की वजह से, इसलिए आई एम मेकिंग यू लुक इट क्लोजली. x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, माइनस नहीं है. जिसको ये इक्वल टू माइनस दिख रहा था वो वापस से वो ना ज़रा ऑप्टिशियन के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके चेक करा लो, हो सकता है तुमको नंबर लग गया रहेगा. क्योंकि जब मुझको नंबर लगा था मुझको भी पता नहीं था. व्हेन आई यूज्ड टू डू माय मैथ्स प्रॉब्लम एंड इक्वल माइनस को मैं इक्वल समझता था, इक्वल को माइनस समझता था, वो प्रॉब्लम होता था. तभी जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ, जब जाके चेक कराया तो वाकई में नंबर निकला मेरा 1.5, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. आई टुक इट लाइटली. जिसको ये महसूस हो रहा है वो इमीडिएटली जाके चेक करा लेना, नहीं तो नंबर बढ़ता चला जाएगा. ओके, नाउ वी गॉट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x as per factor theorem. Okay, so px is equal to 0. Why px is equal to 0? Because of factor theorem. If it is a factor then automatically the value equation का वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है. चलो सब्सटीट्यूट करो. what is the px क्या है, what is px? polynomial x is x cube minus x square minus x minus 1. ओके, सब डिक्लाइनिंग ऑर्डर में ही है. फिलहाल वैल्यू के लिए ज़रूरी नहीं है इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सब्सटीट्यूट करने का. 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इन minus 1 and again minus 1. We have 1 minus 1 minus 1 minus 1. So we have 1 and minus 3. Minus 1 minus 1 minus 1 becomes minus 3, and 1 as it is. 1 minus 3, we get the answer minus 2. So if we substitute 1 in place of x in the equation, we get a value of 2 which is not 0. Okay, since polynomial 1 is not 0, therefore x minus 1 is not a factor of px or the dividend. x minus 1 is not a factor of the dividend or px. दोनों में से जो चॉइस है तुमको, दोनों में से कोई भी एक लिखने का है, दोनों नहीं लिखने का है. राइट एनी वन, आइदर px और डिविडेंड. px is polynomial x. ओके, चलो स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस वन इज सॉल्व, फिनिश. समझ में आ गया, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो वापस से 8 मिनट पीछे जाओ और वापस देख लो. चलो, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज px is 2x cube minus x square minus 45 and qx is x minus 3 is equal. ओके, x minus 3, मैं इधर ही शॉर्टकट मारने का कोशिश कर रहा था, बिकॉज एनी वे वी हैव टू डू. सिंस x minus 3 is equal to 0, therefore x is equal to 3, that is positive 3. So substituting x is equal to 3 in px, if remainder is 0 then it is a factor or vice versa. That means vice versa means ulta. If remainder is 0 then it is a factor, or if remainder is not 0 then it is not a factor. समझ में आया वाइस वर्सा का मतलब? ओके, हम लोग ने इंग्लिश में किया है, बहुत बार किया है, इंग्लिश में, ग्रामर में, साइंस में भी किया है. ओके, दिस वर्ड कीप्स ऑन कमिंग इन अदर सब्जेक्ट. अलजेब्रा में शायद फर्स्ट टाइम मैंने किया रहेगा. और एल्स इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश, यू कैन राइट कंप्लीटली. इफ रिमाइंडर इज 0 देन इट इज़ अ फैक्टर. रिमाइंडर के बदले यूज़ द वैल्यू. इफ वैल्यू रिमाइंडर यूज़ करेगा तो रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा. फैक्टर के अंदर वी हैव टू यूज़ वैल्यू. इफ वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज 0 देन x minus 3 is a factor, or if the value is not 0 then x minus 3 is not a factor of the given dividend. पूरा लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखो, कोई इशू नहीं है. चलो स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग. ओके, since 2x cube minus x square minus 45, we have 2 into 3 cube minus 3 माइनस आउटसाइड, ऑपरेशनल माइनस बाहर है, और x का वैल्यू क्या है, माइनस 3 स्क्वायर एंड माइनस 45. ओके, सो नाउ 3 का क्यूब क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. 2 इंटू 27, दिस इज पॉजिटिव, नो इशू. बाहर माइनस है और
अंदर क्या है 3 3 ज़ा 9, तो वो क्या हो गया 9 पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज 9 पॉजिटिव, बट हम लोग ने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज ऑपरेशनल माइनस मैंने अंदर लिया है। ओके, माइनस इंटू 9, -1 इंटू 9 करेगा तो -9 ही आएगा। ओके, देन -45 एज इट इज़, -9 एंड -45, इफ़ वी ऐड दिस वी गेट 54, 27 2 ज़ा 54, 54 minus 54 we get 0. Since the value is 0, then this is a factor. Okay, you can write it as x minus 3 is a factor of 2x cube minus x square minus 45. Okay, hence proved. इतना लिखना है, लिख सकते हो। ओके, इतना भी लिख देगा, इट इज़ अ फैक्टर, प्रूव्ड तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, राइट। इट इज़ अ फैक्टर, हेंस प्रूफ, खत्म। प्रॉब्लम नंबर 10। ओके, प्रॉब्लम नंबर 10 11 है या नहीं है पता नहीं, टेक्स्ट बुक में देखा नहीं मैंने, लेकिन हम लोगों ने तो पूरा सॉल्व किया है, तो किया है। चलो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x रेज टू 31 प्लस 31 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सेम अपने को क्या करना है, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ही जाना है या रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, सो वी हैव टू गो विथ रिमाइंडर थ्योरम। x plus 1, since x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to -1. Substituting x is equal to -1 in the dividend, हम लोग क्या कर रहा है, डिविडेंड क्या है, x रेज टू 31 प्लस 31 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू रेज टू 31। 31 इज़ एन ऑड नंबर, तो ऑटोमेटिकली साइन रिटेन रहेगा, इवन रहेगा तो माइनस बिकम्स प्लस, लेकिन पावर इसका ऑड नंबर है, सो इट विल बी ऑड ओनली, -1 प्लस 31। ओके, दैट बिकम्स 30, सो दिस 30 इज आवर रिमाइंडर। समझ में आया, फाइंड द रिमाइंडर, वी गॉट रिमाइंडर एज 30। प्रॉब्लम सॉल्व, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। शो दैट m minus 1 is a factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1। ओके, इसमें पॉजिटिव, इसमें ऑड पावर है, इसमें इवन पावर है, एंड वी हैव टू शो दैट दिस इज एन फैक्टर ऑफ बोथ। टेंशन नहीं लेने का, जस्ट कंटिन्यू विथ आवर मेथड। सिंस डिवाइजर इज m minus 1, therefore m minus 1 is equal to 0, therefore m is equal to 1, positive plus। Substitute value of m is equal to 1 in both the equation। ओके, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बिकॉज अगर 1 रेज टू एनी नंबर करो तुमको आंसर 1 ही आने वाला है। सो m minus 1, m raised to 21 minus 1, that is 1 raised to 21 minus 1, 1 raised to 21 और 1 raised to 22, दोनों का आंसर 1 ही है। 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0। ओके, सो in both the cases the remainder is 0 only। Okay, here case I took as m raised to 21 minus 1, here I took the another case m raised to 22 minus 1। ओके, दोनों साइड बाय साइड कर लिया, सो दैट तुमको समझने के लिए ईजी रहेगा, बराबर है। देयर सिंस आर रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर m minus 1 is a factor of m raised to 21 minus 1, and here our statement will be since our remainder is 0, therefore m minus 1 bracket m minus 1 is a factor of bracket m raised to 22 minus 1 bracket close। Okay, it is a factor of both the thing। चलो, now question number 12, this has been marked as important in your textbook। अभी ये साल के लिए शायद कैंसिल हो गया है, but what we are solving it, if it appears in your exam, it will appear as a 3 or a 4 mark problem, because the problem is a little bigger। Okay, let's see, x minus 2 and x minus 1 by 2 both are factors of the given equation, that is polynomial n x square minus 5x plus m। Show that m is equal to n is equal to 2। we have to show m is equal to n is equal to 2। first of all we have to find m and n, और फिर उसका रिलेशन दिखाना है one by one। let's start by using factor theorem। we'll take the first case, x minus 2 is equal to 0, x minus 2 and x minus half both are the factors, so that means x minus 2 also is equal to 0 and ये भी 0। we are considering first case x minus 2, x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2। substitute the value of x is equal to 2 in the given equation। we have by factor theorem, it's already given factor, तो जब हम लोग उसको 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड वी हैव टू राइट 0।
ओके, n इंटू टू स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस m इज इक्वल टू 0। n और m का वैल्यू नहीं है अपने पास, वो अपने को निकालना है। आवर इक्वेशन फाइनली बिकम्स 2 raised to 2 becomes 4, so 4 into n becomes 4n, 4n minus 5 2s are 10, 4n minus 10 plus m is equal to 0. Mark this as your statement 1. ओके, सीन सेकेंड मतलब क्या है, x माइनस 2 को हम लोग ने सीन 1 लिया है, केस 1 केस 2। ओके, राइट दैट केस 1 केस 2। हाँ, आई हैव टेकन सीन 1 सीन 2, सीन नहीं लिखना है, हम नाटक लिखता नहीं है। इट्स वी आर नॉट डूइंग लैंग्वेज और एनी साहित्य स्टडी। मैथ्स है तो इसमें केस करना है। चलो मैं भी इधर कर देता हूँ चेंज, नहीं तो बच्चे लोग बोलेगा सर लेक्चर में आपने सीन दिया था, केस नहीं दिया था। ओके, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। नाउ इन केस 2 विल टेक x minus half is also a factor, therefore x minus half is equal to 0, therefore x is equal to half, positive. Substitute in again in the same equation, we have nx square minus 5x plus m, so we have n into half square minus 5 into half plus m, so we have 1 by 4 n plus, sorry, minus as it is 5 into 1 by 2 करेगा तो minus 5 by 2 आ गया plus m. Okay, नाउ व्हाट वी हैव, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन विथ 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 कैंसिल हो गया, इधर n आ गया। ईयर क्या है, 2 2 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 5 2 ज़ा 10, इधर आ गया 10 प्लस 4m। ईयर वी हैव n minus 10 plus 4m is equal to 0. Okay, this is second. Now this equation is equal to 0, this equation is equal to 0, दोनों भी बराबर है। So by property of factor theorem, statement 1 और statement 2 दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों का वैल्यू इक्वल है, बराबर। So what we'll do, we'll write down both the thing as 4n minus 10 plus m is equal to n minus 10 plus 4m, बराबर। रीअरेंजिंग लाइक टर्म्स, n को हम लोग इधर डाल देंगे तो वो n माइनस हो जाएगा, और ये m को हम लोग इधर डाल देंगे तो ये माइनस m हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस n माइनस 10 एज इट इज़, एंड 4m माइनस m माइनस 10, बराबर। 4n माइनस n इज इक्वल टू 4m माइनस m, ये 10 को हम लोग ने साइड शिफ्ट किया। ओके, सो दिस माइनस 10 कम्स हियर बिकम्स प्लस 10, माइनस 10 प्लस 10 गेटिंग कैंसल, वी हैव 4n माइनस n इज इक्वल टू 4m माइनस m है m। ओके, इधर से देखो m, सो वी हैव 3n इज इक्वल टू 3n इज इक्वल टू 3m, बराबर। So that means dividing this entire equation with 3 we get n is equal to m, तो इतना प्रूव हो गया अपना n is equal to m। अभी n is equal to n वैल्यू तो मिल गया अपने को। फर्स्ट what we have to prove, look into the question, we have to prove m is equal to n is equal to 2, तो अभी m and n equal, वहाँ तक तो हम लोग ने आधा सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m n, बोथ दोनों का भी वैल्यू 2 रहेगा, तभी ये पूरा प्रूफ अपना कंप्लीट होएगा, बराबर है। सो नाउ what we'll do, m is equal to n हो गया अपना। now we will substitute in equation 1 और 2, whichever you like। equation 1 पसंद था या equation 2 पसंद था जो हम लोगों ने डिराइव किया था। in any of the particular equation substitute the value m is equal to n। I have taken equation 1, okay, I take equation 1, जिसको equation 2 लेना है वो 2 ले सकता है। I taken equation 1, what was equation 1, 4n minus 10 plus m is equal to 0, that is 4n minus 10 plus n। m के बदले मैंने क्या किया, since m is equal to n, instead of writing m I have written n, ये चीज़ समझ लो यहाँ पर। so what I have, 4n plus n will be 5n minus 10 is equal to 0, therefore 5n is equal to minus 10 goes this side becomes plus 10, therefore n is equal to 10 upon 5, बराबर। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, we get the value of n as 2। we already know that m is equal to n, और n का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू भी 2 ही रहेगा। therefore from statement 1 2 3 and 4, statement number 3 was this, m is equal to n,
ओके और ये लास्ट में जो हम लोग को मिल गया है वैल्यू 2, दिस इज आवर इक्वेशन स्टेटमेंट 4. So here we have to write from statement 1, 2, 3 and 4 we get m is equal to n is equal to 2 which is proved and this is your final answer. समझ में आया? थोड़ा बड़ा है ये प्रॉब्लम बट it can come for 4 mark and since this is the only bigger problem in your this practice set 3.5 so it is bound to come in your semester exams. Mark this as most important. इसको 5 नहीं 10 बार लिखो और रट्टा मार लो, 4 मार्क तुम्हारा कंफर्म पक्का हो जाएगा सेमिस्टर में. ओके दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नंबर 12. नाउ प्रॉब्लम नंबर 13. ओके प्रॉब्लम नंबर 13 I said it is very easy. Simply substitute the values and find the value of polynomial. सेम हम लोग किया है प्रैक्टिस सेट 3.5 में कुछ नहीं किया हम लोगों ने, खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है and we found the value of polynomials. Here also you have the similar kind of problem. So this problem number 13 is something which my students are going to do it on their own. I am going to start problem number 13. तुमच्यासाठी सेल्फ टेस्ट है, होमवर्क घरी करा पटापट, एकदम इजी है, सिंपल है. जो मैंने सम्स किया वैसा ही सम्स है, 2-2 मार्क वाला सम्स है वो, तो एकदम इजी है, कर सकते हो तुम लोग, एकदम इजी. लेवल 1 वाला था वो जो हम लोगों ने 3.4 में भी किया था, वो टाइप का सम्स है. Okay, now we'll start with another topic that is called factorizing the polynomial. We have done it in standard 7th, we have done it in standard 8th. अभी 9th में वापस रिपीट हो रहा है लेकिन ये अभी थोड़ा एक लेवल अप जाएगा. Okay, let's take a small recall of whatever we have done in our previous standard. Brightness ठीक है, चलो let's start. The first example as given in your textbook and in your guide, let's take it. 3x square minus 2x minus 8. Okay, so now 8 into 3, 8 3s are 24. Okay, 24, and since 8 is minus, so we have minus 24. Now in for factorization what we have to do is we have to get numbers such that two different numbers such that their product is the product of the first and the last constant, but when we add those numbers the sum should be this particular middle constant. Okay, मिडिल जो वेरिएबल है x के साथ जो कांस्टेंट है इसका पार्ट ये प्लस करने पे ये आना मांगता है. ओके, नीड टू नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज 3 into -8 that is 24 and the sum will be 2 or -2. Okay, it will be -2 only. We have to get two numbers such that जिसका प्रोडक्ट अपने को 24 आना मांगता है और सम. So what we'll do, let's try different combination. 6 4s are 24. ओके, माइनस माइनस लिया अपना काम नहीं होता है, -10 हो जाता है. प्लस एंड माइनस लिया तो उसके अंदर भी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट -2 लेना है. तो अपने को 6 को प्लस लिया, 4 को माइनस लिया तो पॉजिटिव 2 आ रहा है, लेकिन 6 को माइनस लिया और इसको प्लस किया तो 6 4s are 24 आ रहा है माइनस में, एंड जब इनको ऐड किया तो क्या हो रहा है, -6 + 4 वी गेट -2 एंड दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट. सो द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी -6 एंड +4. बराबर समझ में आया? देखो ध्यान से, 6 4s are 24 लेकिन प्लस लिया तो हम लोग को नहीं होता है, वो +10 हो जाता है. माइनस लिया तो -10 हो जाएगा. वी हैव टू टेक 1 माइनस एंड 1 प्लस. उसमें भी हम लोग ने बड़ा नंबर को अगर 6 को पॉजिटिव ले लिया तो ऐड करने के बाद 2 पॉजिटिव आता है, अपने को नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर को हम लोगों ने नेगेटिव लिया एंड वी टुक द कॉम्बिनेशन एज -6 + 4. बराबर वही चीज़ हम लोगों ने इधर किया. सो वी हैव 33x स्क्वायर -6x + 4x. -6x + 4x करेगा तो -2x ही हो रहा है. बराबर 6 4s are 24. दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर. अपने को 8 नहीं चाहिए इधर, जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ नंबर ओवर हियर ऑल्सो. We need a number such that which is a product of the first and the third number. So now we have ये मिल गया. अभी ये दोनों का एक सेट बनाने का, ये दोनों का एक सेट बनाने का. हाउ कैन वी डू दैट? इसमें से कॉमन टर्म क्या रहेगा? कैन वी टेक 3x आउटसाइड? येस. सो आई टेक 3x आउटसाइड ओवर हियर, 1x अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर. सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 3x स्क्वायर. -2 क्यों लिखा है मैंने इधर? बिकॉज 3x × 2 करेगा व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट इट विल अगेन गिव यू अस -6x. समझ में आया? सो 3x ब्रैकेट x -2. सिमिलरली फॉर दिस वी हैड टेकन 4 आउटसाइड, +4 हम लोग ने बाहर ले लिया. ब्रैकेट में क्या गया?
one x inside. So if when we open up, it will become 4x minus 4 2s are 8, that is minus 8. बराबर 4x minus 8. So I am writing it in this way, 4 into x minus 2. बराबर. So our next step will be जो common bracket है x minus 2 उसको पहले common bracket को पहला लिख लो, x minus 2 bracket multiply. We are multiplying the same bracket with this as well as this. बराबर. So take these two terms into another bracket. We have 3x in plus 4 in another bracket. So these two are the factors of the given polynomial. We got two factors. अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई करेगा तो विल गेट द सेम पॉलिनोमियल अगेन. सो वी कैन से दीज टू x minus 2 bracket and bracket 3x plus 4 are the factors of the given polynomial. This is something which we have done in your previous standard also. ओके समझ में आ गया, रिकॉल में आ गया, बैटरी चार्ज हो गया, क्या क्या किया था लास्ट टाइम में समझ में आया रहेगा. बराबर. चलो विल टेक अनदर एग्जाम्पल सेकेंड. was the example second? Here 6x square minus 13x plus 6. So यहाँ अपने को क्या करने का है, प्रोडक्ट है 6 6 जा 36. ओके एंड 36 का वी वांट नंबर सच दैट सेंट्रल नंबर क्या है बीच वाला -13. ओके सो हियर वी नीड two numbers such that the product of those numbers will be 36, but when we add them it should give us -13. So how can we do that? 36 का देख लो फैक्टर्स क्या है. 9 4 जा 36. So we can take either 9 into 4. 6 6 जा 36 भी होता है, but either we add it or we subtract it, we will never get 13. बराबर. हम लोग को +12 या -12 ही मिल सकता है, उसके अंदर कोई चांस नहीं है दूसरा कुछ, या 0 मिलेगा. 13 नहीं मिल सकता है. 13 द ओनली पॉसिबिलिटी इज 9 4 जा 36. ओके इफ यू टेक दैट पॉजिटिव, 9 plus 4 will become 13 positive. We cannot take them positive. ओके 1 प्लस एंड 1 माइनस लिया तो भी अपने को पॉजिटिव प्लस मिलेगा, बड़ा नंबर को माइनस लिया तो माइनस मिलेगा, दोनों को माइनस लिया तो क्या होगा, -9 -4 वी गेट -13. ओके सो दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन विच वी कैन अप्लाई. सो 36 चाहिए और एडिशन में अपने को -13 चाहिए. सो दीज आर द टू नंबर्स वी कैन टेक. वी हैव टेकन द सेम थिंग, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6. बराबर. अब इसमें क्या करेगा हम लोग, इसका एक सेट बनाएगा, ये दो नंबर का अलग सेट. सो दिस इज 6x. कैन आई टेक 3 कॉमन? सो आई टेक 3x एज कॉमन आउटसाइड. ओके इधर भी x है इधर भी x है, एंड बोथ द नंबर्स आर 3 इज अ फैक्टर फॉर बोथ द नंबर्स. सो कॉमन 3 आ जाएगा. 3x outside the bracket, inside the bracket 2x minus 3. Why? 3x into 2x will be 3 2s are 6 and x into x will be 6x square minus 3 into 3 will be 9 into x will be 9x. बराबर. So therefore we have 3x bracket into bracket 2x minus 3. Okay. Then here what can we take common? 2 outside I have taken. Okay. Why? Because 2 is a common factor for both the numbers. So 2 bracket again we have same 2x minus 3. बराबर. दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया. सो कॉमन ब्रैकेट को हम लोग ने पहले नीचे ले लिया, और ये वाला क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ दिस ऑल्सो. सो इसको दूसरा ब्रैकेट में डाल दो, 3x minus 2 and 2x minus 3 bracket. How it is read? It is read as bracket. Therefore bracket 3x minus 2 into bracket 2x minus 3 are the required factors of the given polynomial. बराबर. We have taken this particular example. Now as I said, we are going to move a step upwards. वो upward वाला step क्या रहेगा, level 2 of factorization. Okay, let's see this particular problem. The problem given is 3 into x square minus 5x whole square minus 2 into bracket x square minus 5x plus 5 minus 6. Okay, this is your problem. इसको 1 लिया है मैंने, क्यों लिया बाद में देखेंगे. You will come to know. This is your problem. How can you go about with this? Now understand this. इतना बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करने का आदत नहीं है. We'll reduce it to a smaller form.
ओके, व्हाट इज़ द कॉमन ईयर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर है, स्क्वायर है इधर, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x सिंगल है, बराबर, स्क्वायर नहीं है, सिंपल है. सो विल टेक दिस कॉमन थिंग. मैचिंग क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज मैचिंग. सो व्हाट विल डू इज लेट सब्सटीट्यूट x square minus 5x is equal to m. Okay, let us substitute this x square minus 5x is equal to m in the polynomial. So we have the same polynomial again, but if we substitute as m तो क्या हो जाएगा? 3m square minus 2 into m, इधर स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, इसलिए m plus 5, that is this is the value of m and this is plus 5 as it is. Okay, and ये minus 6 बेचारा बाहर खड़ा है, इसको as it is लिख दो, उसका अभी फ़िलहाल कोई रोल नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहेगा. So now we have the, what is the new form we got? 3m square minus 2 into m plus 5. Let's open the bracket. We get 3m square minus 2m minus 10. 2m minus 10. Okay, minus 6. So this is the, अभी ये स्टेप के बाद में क्या है? What are the common terms that can be cancelled or added? Minus 10 minus 6 becomes minus 16. So our equation becomes, sorry, polynomial becomes 3m square माइनस 2m माइनस 16. अभी इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग. दिस इज 16 3 कितना होता है? 16 3 48. इधर निकाला है मैंने, देख, 16 3 48. नाउ वी वांट टू नंबर्स सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई दोज नंबर्स वी शुड गेट 48. ओके, सो 8 5 40, 8 6 48. 8 and 6 मिल रहा है अपने को, डिफरेंस 2 है. ओके, 8 and 6 के अंदर डिफरेंस 2 है. सो व्हाट वी वांट, माइनस 2 चाहिए तो हम लोग बड़े वाले नंबर को 8 को माइनस में ले लेगा. पॉजिटिव चाहिए तो हम लोग स्मॉलर नंबर 6 को माइनस में ले लेगा, तो प्लस 2 मिलेगा. बट वी वांट माइनस 2 लेने का है तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेगा. सो वी टुक इट एज प्लस 6 एंड माइनस 8. सो हम लोग ने इधर ऐसा सब्स्टिट्यूट किया उसको, 3m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 8m माइनस 16 एज इट इज़, ये बेचारा है. ओके, इसको ऐसे लिख देने का, 6m माइनस 8m आया. सो नाउ इसका एक सेट बनाओ, इसका एक सेट बनाओ. व्हाट इज़ द कॉमन थिंग? 3m आउटसाइड द ब्रैकेट into m plus 2. m plus 2 is, when we open the bracket, 3m into m will be 3m square and 3m into 2 will be 6m. बराबर, तो ये बराबर हो गया बैलेंस. माइनस 8 आउटसाइड द ब्रैकेट बिकॉज 8 इज़ अ फैक्टर फॉर दिस नंबर एज वेल एज दिस नंबर. सो 8 हम लोगों ने कॉमन ले लिया. अगेन इनटू द ब्रैकेट 8 प्लस 2, प्लस क्यों है? बिकॉज यू वांट माइनस 16. माइनस 8 इंटू एम करेगा तो माइनस 8m हो जाता है ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट. माइनस 8 इंटू 2 करेगा तो माइनस 16 हो जाता है. सो अपना परफेक्टली बैलेंस्ड है, बराबर. सो कॉमन टर्म क्या आ गया इधर? m प्लस 2 ब्रैकेट m प्लस 2 ब्रैकेट m प्लस 2. तो उसको पहले कॉमन को नीचे लिख लिया. और वेरिएबल में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो वी कैन पुट इट इनटू अनदर ब्रैकेट. आई एम राइटिंग इट एज 3m माइनस 8 इधर ले लिया. ओके, सो वी गेट टू डिफरेंट ब्रैकेट, दैट इज ब्रैकेट m प्लस 2 एंड ब्रैकेट 3m माइनस 8. वी गॉट द फैक्टर्स, मिल गया फैक्टर्स. नाउ री-सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x in the given equation. So now instead of m we'll write it as x square minus 5x plus 2, and here it is 3m, that is 3x square minus 15x minus 8. These two are the factors of this given polynomial. समझ में आया? इतना मेथड समझ में आया? अगर समझ में आ भी गया रहेगा तो आई विल रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट कि ये जो पिछला 10-12 मिनट का जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, especially the explanation of this is understanding the reducible form. It is called as reducible form in your 9th standard. Okay, but in 10th standard you will be dealing it with as substitution and resubstitution form of factorization. This form of factorization is called as substitution and resubstitution. Okay, this term will be used in your 10th as well as in your 11th and 12th maths also. अगर गलती से साइंस लिया तो ओके, कॉमर्स लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा. और आर्ट्स वालों को तो रहता ही नहीं है, वैसे भी आर्ट्स वाले बुद्धू बच्चे रहते हैं, उनको मैथ्स देगा तो कोई भी पास नहीं होएगा. ओके, तो आर्ट्स में तो मैथ्स रहता ही नहीं है. कॉमर्स में रहता है मैथ्स और अकाउंट्स, ये दोनों में से यू हैव टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट.
अभी आदमी कॉमर्स में गया है तो अकाउंटेंट बनने के लिए गया, तो अकाउंट्स ही लेगा ना, मैथ्स थोड़ी लेगा, उसको थोड़ी शकुंतला देवी बनना है। बराबर। ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को रिवाइंड करके 2 से 3 बार सुनो, बिकॉज आगे पूरा सम्स इसी के ऊपर आने वाला है। एंड अभी बाकी का सम्स आई स्टार्ट प्रैक्टिस एट 3.6 एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। ये फिलहाल एक्सप्लेनेशन का वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। वाई? बिकॉज 3.6 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स, ज़्यादा नहीं है इधर, खाली 7 ही प्रॉब्लम है, जिसमें से 6 प्रॉब्लम तो इधर ही सॉल्व हो गया है। उसके ये पार्ट सेकंड के अंदर भी हम लोग को 7 प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर वी हैव फैक्टराइजेशन 3 to 5 मार्क्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 3 प्रॉब्लम बहुत स्वीट एंड सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर 4, 1 मिनट यार, अटक गया है क्या? हाँ, प्रॉब्लम नंबर 4 भी सिंपल है, बट प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 जो है दीज आर हार्ड, जो तुम लोग का ईयर में स्किप कर दिया है टीचर ने। क्यों स्किप किया है? आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। किधर है वो पेपर, ढूंढो ज़रा। अरे सॉल्व करके कहाँ डाला था यार, इसलिए बोला था इसी में रखने के लिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक।